بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے سائٹ ایریا کراچی کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے 26 ستمبر 1947 کو رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا، اور اس وقت بھی سائٹ ایریا پاکستان کا ایک ترقی یافتہ صنعتی علاقہ تھا جس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی تھی۔ وہ سائٹ ایریا بعد ازاں ذبوح حالی کا شکار ہوا، لیکن سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے ذمہ داران کی لگاتار اور انتھک محنت سے مسلسل بہتری آتی رہی۔ انہی کوششوں اور کاوشوں کو ہر سال آنے والی نئی ٹیم نے اونرشپ لے کر آگے بڑھایا، اور اب ہر آنے والا دن سائٹ ایریا کو ریفارم کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ سائٹ لمیٹڈ جس کی کور رسپانسبلٹی اس علاقے کو صحیح کرنا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے پاس نہ بجٹ تھا، نہ مشینری، نہ ٹرین مین پاور، اور نہ ہی کام کرنے کا کوئی ارادہ، جس کی وجہ سے سائٹ بالکل ہی تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، جہاں سڑکیں نالے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، جو سٹارم واٹر اور سیوریج کے پانی سے بھرے پڑے تھے۔ جگہ جگہ انکروچمنٹ نے پورے سائٹ ایریا کو خراب کیا ہوا تھا۔ لہٰذا اندازہ یہ ہوا کہ سائٹ ایریا کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑے جانے کے بجائے ہم کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے پیٹرن ان چیف زبیر موتی والا، چیف کوآرڈینیٹر سلیم پارک، ایکس پریزیڈنٹ جاوید بلوانی اور دیگر ذمہ داران کے علاوہ بی ایم جی گروپ نے اپنی مدد آپ کے تحت متواتر چیف منسٹر کے پاس جا کر سندھ بجٹ کے اینیول ڈیولپمنٹ پلان میں پہلے 1 ارب اور پھر 1 ارب روپے مختص کروائے، جس سے 29 روڈز، گلیاں، سیوریج اور سٹارم واٹر ڈرینز کا کام ہونا ہے۔ الحمدللہ 21 روڈز پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور بقیہ 8 روڈز اگلے سال تک مکمل ہو جائیں گے۔ نئے بننے والے روڈز میں بہترین ڈرینیج سسٹم بنایا گیا، جس میں ڈائمنشن اور کنسٹرکشن کا زبردست خیال رکھا گیا، جس سے حالیہ شدید بارشوں میں بھی ایکسیس واٹر پہلے کی طرح کھڑا نہیں ہوا۔ اسی طرح جہاں جہاں نئے نالوں کی ضرورت تھی وہ بنائے گئے، اور پرانے نالوں کو صحیح کروا کر ان کی صفائی کروائی گئی۔ اور اب انفراسٹرکچر کی بہتری کے بعد اسٹریٹ لائٹس، گرین بیلٹ اور سائیڈ واکس اس کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں، اور ان سب پہ پوری تیزی کے ساتھ دن رات کام ہو رہا ہے۔ کچرا اور ڈبری۔ سائٹ کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کچرا اور ڈبری پھینکنا تھا۔ سائٹ لمیٹڈ کے 2 ڈمپرز اس کام کو کرنے سے قاصر تھے، اور وہ ان کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ کچرا ان سے اٹھوایا جائے۔ کئی ماہ اور انتھک کوششوں کے بعد ہم نے یہ اگریمنٹ سائن کیا، جس میں ٹرائل پیریڈ کے درمیان 22 مقامات سے فری آف کاسٹ نہ صرف ساری ڈبری اٹھوائی گئی، بلکہ سویپنگ بھی فری آف کاسٹ کروائی گئی۔ بارشوں سے پہلے نالوں کی صفائی شروع کروائی گئی۔ شیر شاہ، ہارون آباد اور لیاری ندی میں جہاں اس کا ڈسچارج ہے وہاں سے صفائی شروع ہوئی۔
और जितनी भी कल्वर्ट्स थी उनको खुलवाया गया और रंगी नाले की तामीर भी की गई। इसमें दोनों तरफ बनाई जाने वाली दीवार की वजह से वहां का फ्लो भी बेहतरीन हो गया। यही वजह है कि इस साल पहले की निस्बत तकरीबन 4 गुना ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह साइट में कहीं भी पानी खड़ा नजर नहीं आया और साइट महफूज रहा और किसी भी फैक्ट्री में पानी जमा नहीं हुआ। ग्रीन एनवायरनमेंट इन साइट। साइट एसोसिएशन का मोटो अपने मेंबरान को ग्रीन एनर्जी की जानिब रागिब करना था। हुकूमत की जानिब से रोज बरोज बिजली के निर्खों में इजाफे और कमर्शियल कनेक्शंस पर 17% एडिशनल सेल्स टैक्स लगा दिए जाने की वजह से फी यूनिट कॉस्ट 70 रुपए तक जा चुकी है। कॉस्ट देखते हुए हमने 50 केवीए के सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाए। चीफ सेक्रेटरी साहब जनाब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने ग्रीन एनर्जी का इफ्तिताह मोरखा 4 जून 2022 में किया और उनकी तरफ से इस इक़दाम को खासा सराहा भी गया। अब साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची न सिर्फ बिजली के मामलात में खुद कफील हो गई है बल्कि इससे साइट एरिया के माहौलियात में भी बेहतरी आएगी। सिक्योरिटी। पाकिस्तान में ये साल मुश्किल तरीन था। महंगाई और बेरोजगारी होने की वजह से क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब सैलाब की तबाहकारियों से इसके मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे साइट सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम गार्ड्स पूरी तंदही से हर आने वाली कंप्लेंट पर फौरी एक्शन लेते हैं और दहशतगर्दों, चोरों और लुटेरों को आए दिन पकड़ा जाता है। साइट सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम गार्ड्स, पुलिस नफरी, सिक्योरिटी कैमरे, मोटरसाइकिल बरदार पुलिस, हमारे 4 पुलिस मोबाइल वैन दिन रात 24 घंटे अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। और सबसे खुशगवार बात यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों की निस्बत यहाँ क्राइम रेट सबसे कम है, जबकि ये इलाका चारों तरफ से रिहायशी इलाकों में घिरा हुआ है जिसमें पार्क कॉलोनी, बल्दिया, मेट्रोविल और औरंगी टाउन शामिल है। यही नहीं, साइट एरिया में तकरीबन 48 आग लगने के वाकयात सामने आए थे। हमारे फायर ब्रिगेड्स के जरिए निहायत ही कम रिस्पांस टाइम यानी सिर्फ 3 से 5 मिनट में पहुंचकर आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया था, यानी आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया गया और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया था। कम रिस्पांस टाइम होने की वजह से सिर्फ 2 फायर टेंडर्स ने ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है और आवाम को बहुत बड़े नुकसानात से बचा लिया है। इसके अलावा साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री पूरे साइट को एम्बुलेंस सर्विस भी मुहैया कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम सर्विसेज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं। EOBI सेल गवर्नमेंट और हमारे मेंबर्स के दरमियान एक फैसिलिटेटिंग ब्रिज बनने के लिए हमने साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का कयाम किया था। इस मकसद के लिए EOBI बाइख्तियार लोगों को यहां बुलाया गया, उनको मेंबरान की सारी मुश्किलात से आगाह किया गया और EOBI का सेल कायम किया गया। तकरीबन 50 से ज्यादा अनड्यू हरासमेंट केसेस को यहां पॉजिटिवली रिजॉल्व किया गया। इसी तरह यहां लेबर के मसाइल हल करने के लिए SESSI की हेल्प डेस्क का कयाम भी किया गया। इससे पहले की निस्बत मेंबरान की आसानी में वाज़ेह फर्क देखा जा सकता है और यही वजह है कि हर आने वाले दिन मेंबरान की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ERP सिस्टम को बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है जो फिलहाल टेस्टिंग के मराहिल से गुजारा जा रहा है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। सैलाब की तबाहकारियां, कोविड-19 की खतरनाक सूरत हाल में भी साइट एसोसिएशन मदद करने में किसी से पीछे नहीं रही थी। तमाम मेंबरान ने दिल खोलकर सैलाब ज़दगान भाइयों और बहनों के लिए फंड्स इकट्ठे किए, जिससे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह, सांगड़, सजावल, मीरपुर खास, डिगरी और सिंध के दीगर इलाकों में बजरिया अल मुस्तफा ट्रस्ट और अल खिदमत के जरिए मदद की गई और सैलाब ज़दगान के लिए राशन,
मेडिकल कैंप्स के साथ साथ लाइव फूड्स खिलाने का भी इंतजाम किया गया। गैस का मसला। सिंध को गैस की मुकम्मल एलोकेशन ना मिलने और साइट एरिया कराची की टेल में वाक़े होने के बायस हमेशा एक मसला लो प्रेशर और गैस की शदीद शॉर्टेज का है। हमारे मेंबरान की इस परेशानी को बारहा सामने लाने और मसाइल को उजागर करने के बायस अब सिंध गवर्नमेंट भी हमारी हम आवाज हो गई है। इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि आबादी से बाईपास करती हुई एक गैस लाइन आए जो बतौर खास सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए मुख्तस की जाए। इस सिलसिले में एमडी सूई गैस इमरान मनियार और दीगर ओहदेदारान के साथ मुस्तकिल मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका फंड एलोकेट करने का वादा भी किया है, जिससे हमारी गैस की परेशानी का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। मोहतरम वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने अपने कराची के पहले दौरे में पेट्रन इन चीफ जुबैर मोतीवाला की जाती कोशिशों से 4.3 बिलियन का फंड मुख्तस करवा लिया गया था, जिसमें से इस साल अक्टूबर में 1 बिलियन जारी कर दिया जाएगा। ये फंड 49 सड़कों, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और सूरज की बहाली के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। पानी का मसला। साइट एरिया को 1 MGD पानी दिया जा रहा है, जो कि हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। इसलिए साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री की अनथक मेहनत और कोशिशों से चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने इसको बजट में शामिल कर लिया है, जिसका PC1 तैयार है। इसके मुताबिक मुस्तकबिल में साइट एरिया को 10 MGD पानी की लाइन दी जाएगी। इसके अलावा 2023-24 में शुरू होने वाले K4 मंसूबे में भी हमारी कोशिश है कि इसमें भी साइट एरिया को कोटा अलॉट कर दिया जाए। ड्राइविंग लाइसेंसेस के हुसूल में आसानी के लिए कैंपेन चलाई गई, जिससे साइट एरिया के हजारों लोग मुस्तफीद हुए। IT टावर। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब को साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए IT टावर जैसे मंसूबे का प्रपोजल दिया है। As a leading industrial estate, जहां साइट एरिया को प्रोजेक्शन की जरूरत पेश आई है, हमने डिप्लोमैट्स को भी इनवाइट किया, जो कि नई अच्छी रोड्स और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस मुमकिन हो सका, जिनमें ईरान, टर्की और इंडोनेशिया के डिग्निटरीज आए। हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान हमसे है। इसी लाजवाल मोहब्बत का इजहार करने के लिए रेंजर्स और पुलिस के ताउन से 14 अगस्त परेड की तकरीब मुनक्किद की गई, जो साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री की जानिब से अपने वतन अजीज से हुब्बुल वतनी की एक जिंदा मिसाल है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री और इसके मुतालिका मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को रेनोवेट भी किया गया, जिसका 70% ताउन GFS बिल्डर्स ने किया है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हमारी कोशिशों और काविशों में जर्रा भर भी कमी नहीं आएगी। साइट को ओन करते हुए वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री साइट एरिया को आगे बढ़ाने में हमेशा अपना किरदार अदा करती रहेगी और तरक्की के इस सफर को जारी रखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री पाइंदाबाद।